Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good afternoon, everybody. So this is lecture number 2 and chapter number 8, where the heading heading of the Ashwini Rathod. I will tell you afterwards. Heading of this chapter is gravitation. Fine. So basically, this is NCRT class, and this physics is belonging to 11th class physics. So basically, this is 88.2 relation between small g and capital G. वो चीज को देखेंगे, ठीक है, और डिटेल में देखेंगे. And this is beta series of physics, as well as my channel's name is Physics Indian Professor, which is YouTube channel. You'll get the regular updates of the physics, right? चलो ठीक है. Now, before starting, तो हमने कहाँ पे छोड़ा था? In the last class हमने छोड़ा था कि value of g does not depends 3 factors पे. और एक क्वेश्चन भी था हमारा, ठीक है. क्वेश्चन क्या था? Why gravitational constant is called as universal gravitational constant? उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation. Okay, Newton's law of gravitation is called as universal law of gravitation. ठीक है. Why? क्यों? Okay, so we are going to make that Newton's law of gravitation is called as universal law of gravitation. Why? क्यों? Because it in the sense क्या? Newton's law of gravitation, it is applicable for all bodies in the universe. All bodies in the universe. ठीक है. And hence it is called as universal law of gravitation. ठीक है ना? क्या ये बात क्लियर हो गई? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे बॉडीज को अप्लाई करता है. चलो, now Vaishnavi Mat, Shrishti Nandyar, Pari Jain, listen up, my dear kids. Boys, you should take a part for answering the questions. You should discuss the various things. थोड़ा सा एक्टिव बनना चाहिए आप लोगों को. गर्ल्स क्विक से रिस्पॉन्ड करते हैं. आई होप दैट बॉयज शुड रिस्पॉन्ड. SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये सारे आपको क्या करने पड़ेंगे? नोट करने पड़ेंगे. दीज आर द नोट्स. ठीक है, ये सारे आपके नोट्स हैं. यू शुड टेक दीज थिंग्स. SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा? नाउ आप जब लिखते हो कैपिटल G इज इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2 मीन्स m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो ये m स्क्वायर बन जाता है. सो फोर्स का न्यूटन मिलता है आपको, एंड डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर मिलता है, एंड मास का kg स्क्वायर. सो दिस इज योर व्हाट? ये आपका क्या है? दिस इज योर SI यूनिट. ठीक है, सिंपल है. So this is first point. You made that. We made that, right?
So the second point, the dimensional formula. The dimensional formula of कैपिटल जी. ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी आप लिखते हो, whenever you are writing small f, it's not small f, it's capital F, it's force. अरुण, F means force. क्या होता है? Force. So capital G is equals to, so force का कितना आता है बताओ? डायमेंशनल फॉर्मूला mlt to the power minus 2 and distance is in terms of L square, so mass in terms of m square. ठीक है, तो 2 और ये 1 कैंसिल हो गया एंड L क्यूब बन जाएगा t रेज टू माइनस 2. m ऊपर चला गया तो m रेज टू माइनस 1, so this should be m raised to minus 1, L raised to 3, t raised to minus 2. So this is your dimensional formula. So dimensional formula of gravitational constant क्या लिखोगे आप लोग? So you should write that ये वाला. ठीक है? Yes, this is very much clear. आपको ये चीज पक्के तरीके से समझ में आना चाहिए. ठीक है? So एक काम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं so that हम लोग अच्छी तरह से पॉइंट्स बना पाए इसी स्पेस में. We are going to use this space. थोड़ा सा बैनर थोड़ी देर के लिए रहे तो it will be useful for me. ठीक? Okay, listen up, my dear kids. So the third point I'm going to make. So I think आप लोगों ने कैवेंडिश का नाम सुना होगा. बेसिकली इसका नाम जो है हेनरी कैवेंडिश बोलते हैं. कितने लोगों ने नाम सुना है इस बंदे का? बताओ इसका अचीवमेंट क्या है? What is his achievement? Cavendish determined the value of कैपिटल जी. ठीक है, वो भी कैसे? थ्योरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंटली. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली. सो थ्योरेटिकल जो वैल्यू है, ठीक है, ज्यादा कम किसने बोला था? सर आइजैक न्यूटन ने. बट एक्सपेरिमेंटली इट हैज डिटरमाइंड बाय द हेनरी कैवेंडिश, सर हेनरी कैवेंडिश. ठीक है, वो भी कब? इन 1798. ठीक है, सो दिस इज थर्ड नोट, वी नीड टू नोट इट आउट. तो इस बंदे ने बोला कि यार जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू जो है इतना ही है. ठीक है, 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो ही स्पेसिफाइड दैट. चलो कोई गल नहीं. तो वैल्यू कितना बोला? तो इसी बंदे ने वैल्यू कितना दिया? इट्स वैल्यू, मतलब इट्स वैल्यू इन द सेंस कैपिटल जी के बारे में बात चल रही है, इज गिवन बाय कैपिटल जी इज इक्वल्स टू 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. दिस इज योर फोर्थ पॉइंट यू कैन मेक. ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा गया है तो इसको छोड़ दो, तो आपको पता चल गया कि जी का वैल्यू क्या है. ठीक, सो वी आर गोइंग टू रब दिस. फिर पांचवा पॉइंट बनाएंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल ऑल अबाउट स्मॉल जी, कैपिटल जी, एफ. ठीक है, जो भी है. सो फिफ्थ पॉइंट, द लॉ गिव्स, ये जो लॉ है ना, यूनिवर्सल लॉ, क्या देता है? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस. पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस किस लिए बोला जाता है बताओ मुझे फट से.
what it tells about, it tells about force existed between 2 point masses. Point masses इसलिए बोला जाता है कि वो जो डिस्टेंस होता है ना, it is very much larger when you compare with the height or diameter of the objects. तो diameter of the objects अगर compare करें between the distance existed between 2 point masses, तो या मतलब 2 point masses कहने के बजाय two objects, you'll come to know that the diameter is very much smaller. या तो इसलिए पॉइंट मासेस बोला जाता है इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑब्जेक्ट्स या बिग बॉडीज व्हाटएवर. ठीक है, बट it can be applied to large sized bodies by assuming the, यार इतना लेट क्यों करते हैं लोग, by assuming the entire mass of the body concentrated at its center. ठीक है, see here my dear kids, हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं. Force existed between 2 point masses when we compare the dimension of the bodies with the distances existed between two masses, yeah, two bodies. ठीक है, so then also we used to call it as point masses, or else you can apply the law of gravitation या gravitational constant जो भी है into smaller masses. Also you can apply to the large size bodies. What? By simply assuming the entire mass of the earth, say for example entire mass of the earth मतलब large size body है and the whole mass is concentrated at the core part of the earth. So whatever type of large bodies, if it is solid, if it is rigid, we used to assume that, हम लोग assume करते हैं कि the whole mass of the body, since because of its symmetry spherical है, तो पूरा जो center of mass है ना वो center पे रहता है. बस वही चीज हम लोग फोकस करते हैं, due to which we used to say that कि force वहीं से exist करता है, interact करता है. Okay, is this clear my dear kids what I'm trying? है ना, चलो आगे बढ़ते हैं. So I'm going to make a sixth point. चलो, the gravitational force. The gravitational force between two particles constitutes an action and reaction pair. As the value of capital G as the value of capital G is small, the force of attraction between ordinary bodies is not observed. The force becomes appreciable only when the bodies
have larger masses or large masses. ठीक है, see here what they are trying to say. So whenever you take a object, ठीक है, एक आप ऑब्जेक्ट लेते हो, ठीक, say for example you are considering particles, दो आपने एटम्स ले लिए, say for example from this body, ये आपके एटम्स हैं, ठीक है. So just you keep as if both are in touch with each other, ठीक है. तो gravitational force between two particles constitutes an action and reaction pair. तो अगर ये इधर खींचता है तो ये इधर खींचता है, means first mass is attracted by the second mass, ठीक है. तो सेकेंड मास को भी क्या फर्स्ट मास खींचता है, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस रहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर. As the value of capital G is small, the force of attraction between the ordinary bodies is not observed. मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, whenever we used to take the body is like say for example this is your pen and this is your mobile, there will be force of attraction in between these two masses. Say for example a single particle I'm choosing from the mobile and the single particle I'm choosing from the pen. So I'm going to specifically see the force of attraction between these two particles which are existed at two different bodies. Okay, these are ordinary bodies, so the mass carried by these bodies is not huge, which is not appreciable. Okay, so that is why the force of attraction, which we used to call it as gravitational constant between these two masses, is constant and negligible. वो दिख के नहीं आता है. So these are ordinary bodies. That is why we are saying that it is not observable. Say for example, if sun and earth come nearer to each other, ठीक है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मान के चलो यूनिट डिस्टेंस पे है, and the masses we are going to take with respect to the proportion of whatever they have defined into the universal law of gravitation, not universal law of gravitation, gravitational constant. तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन जो है, उस हिसाब से सन और अर्थ को नजदीक नजदीक लिया जाए, and if we observe the force of attraction, definitely it will be going to get observed by our eyes. Why? Because those are larger masses as per they have said into the 6th point. तो larger masses रहते वक्त we can appreciate, we can observe the force of attraction. force हमको दिखेगा. appreciable मतलब दिखने में आएगा, negligible मतलब दिखने में नहीं आएगा. Are you getting my point? Not observed करके इसलिए यहाँ पे term यूज किया गया है. क्लियर हो गया? So this is very much simple, my dear kids. 6th point. By 6th point, we are trying to prove that छोटे particles में जो gravitational constant वाला force होता है ना, वो दिख के नहीं आता है. But when it comes to the larger masses, the force will be appreciable. Means it cannot be neglected. तो आपको दिख के आएगा वो चीज, ठीक है? चलो कोई गल नहीं. Now the 7th point we are going to make pertaining to gravitational constant, ठीक है? So among the basic forces in nature, बेसिक फोर्सेस कौन से हैं? एज आई सेड पहले चैप्टर में फिजिकल वर्ल्ड में, फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सेकंड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड वन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ वन वीक न्यूक्लियर फोर्स. सो अमॉन्ग द बेसिक फोर्सेस इन नेचर, द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट वन. तो ये सबसे कमजोर रहता है फोर्स. दैट इज वाई द रीजन, या वीक फोर्स सबसे कमजोर नहीं रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर रहता है. क्योंकि ये कमजोर है इसीलिए हम जाके ऐसे चिपकते नहीं बोर्ड को, बिकॉज बोर्ड इज पुटिंग फोर्स ओवर मी, पुलिंग फोर्स से खींच रहा है, लेकिन मैं उधर जाके नहीं गिर रहा हूं.
Sir, then why come you're sitting on the earth, sir? Why come you're sitting on the earth? Now let me make you clear very much in a possible manner. This is your earth, ठीक है? And you're somewhere here at the point, यहाँ पे point पे हो. So you're, ये समझो ये हो आप, ठीक है? थोड़ा सा different color से मैं दिखाऊंगा so that it should be visible to you. दिख रहा है आपको dot? Is this dot visible? थोड़ा सा और दिखने के लिए और बड़ा करूंगा, छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है. So this is your small mass m, आपका छोटा सा mass है, okay? And the whole, ये जो बड़ा दिख रहा है ना, this is capital mass m. तो दोनों masses के बीच में जो है ना, क्या चलते रहता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब कैपिटल m छोटे m को इधर खींचेगा और स्मॉल m कैपिटल m को इधर खींचेगा. नाउ टेल मी, व्हेन यू कंपेयर द साइजेस ऑफ द मासेस, कौन सा अप्रिसिएबल है और कौन सा निग्लिजिबल है? क्या मास की तरफ कैपिटल एम जाएगा और एल्स कैपिटल एम की तरफ मास आएगा? विच पॉसिबिलिटी आपको लगता है? या कैपिटल एम इज अप्रिसिएबल, मतलब ये वाला सही है. दिस वन विच इज नॉट पॉसिबल. यू कैन नॉट ड्रैग द अर्थ विथ यू. ओके, यस. उमेश पी परिजैन, yes, very good. Ashwini Rathod, small to, yeah, small towards peak, very good. Now what I'm trying to convey you peoples, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप कितना भी उछलो वापस आके जमीन पे गिरोगे, because of force of attraction, which is the property of gravitational force. And that gravitational force is having pulling force by the earth on you, and you are going to get towards the earth. That's it. Okay, Aishwarya Saundarya, now you are getting what I'm trying to say. ठीक है, ये तो चीज क्लियरली आपको समझ में आई. Now another thing, the last point I'm going to make, eighth one, it is a central force. ठीक है, सेंट्रल फोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करता है सर ग्रेविटेशनल फोर्स. not like that, not like that. So the force is operated from the center of the mass. ये समझो बड़ा है मास और ये छोटा है, ठीक है? So the basically this force will be, you know, acted from the center. तो ये कभी भी जो फोर्स एक्ट करेगा ये आपको सेंटर के तरफ से ही करेगा, मींस फ्रॉम द सेंटर. So the small mass is trying to drag the larger mass to the what? Towards center. इधर खींच रहा है, ठीक है? And this larger mass is dragging this smaller mass towards the center. तो center of the mass से ही act होता है. Yeah, you can say. Okay, so basically it is center here. तो इसी के मतलब whenever you are falling from the height, so you will be trying to go towards the center of the earth. So the earth surface, it will stop you to move towards the center. मतलब आप जब भी गिरोगे ऊपर से किसी हाइट से, तो आपका जो डायरेक्शन होता है ना वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है. लेकिन अर्थ का जो सरफेस है ना वो आपको स्टॉप कर देता है, नहीं भाई आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? जैसे say for example, if you are trying to enter into the parliament, police will be going to stop you. No, you cannot enter inside. यही तक आपका restriction है. They will put a gate, they will put a bar, ठीक है? चलो, now you got that central force क्या होता है. सेंटर से जो फोर्स एक्ट होता है उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं. Okay, and the ninth point I'm going to make you, basically it is a mutual force. ये क्या होता है? It is a mutual force. मतलब दो 1 kg of unit masses है. थेरो डायग्राम थोड़ा सा अच्छा डालेंगे. to 1 kg of unit masses, ठीक है? And both masses
is kept at a unit distance पे रखा हुआ है. So 1 न्यूटन ऑफ फोर्स से एक मास, पहला वाला मास दूसरे वाले मास को खींच रहा है और दूसरा वाला मास पहले वाले मास को खींच रहा है. ठीक है, तो दोनों एक एक न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे. ठीक है, बट म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना इन दोनों के बीच में, वो कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. क्योंकि हमने जो एक कंसेप्ट रखा, दैट कंसेप्ट इज mass 1 is equals to 1 kg, mass 2 is equals to 1 kg, so kept at a distance of 1 meter, but 1 newton of force is applied by the first mass over the second mass, and second mass is applying the 1 newton of force over the first mass. तो दोनों एक दूसरे पे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअली जो खींच रहे हैं, म्यूचुअल फोर्स जो होता है ना एक दूसरे पे, ठीक है, इंडिविजुअली कितना 1 न्यूटन लगा रहा है, existed force in between them is different. वो कितना है? That is 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. जैसे होता है ना, you will try to कहते हैं ना, आप ट्राई करोगे, मैक्सिमम ट्राई करोगे कि मुझे इतना टारगेट रीच करना है, लेकिन उस टारगेट तक आप नहीं पहुंच पाते. आपका टारगेट ये होता है ये, ठीक है, आपको यहां तक पहुंचना होता है, बट यू विल रीच अप टू हियर ओनली. सो आप 1 न्यूटन लगा रहे हो, लेकिन 1 न्यूटन नहीं लग रहा है. फोर्स कितना लग रहा है? 6.67 into 10⁻⁻11 लग रहा है. बस यही है म्यूचुअली. सो दिस इज हाउ अ म्यूचुअल फोर्स. ठीक है, नाउ आई विल ट्राई टू राइट द मीनिंग ऑफ ग्रेविटी. ये ग्रेविटी क्या होता है बताओ मुझे. एज आई सेड इन द लास्ट क्लास, इट इज द फोर्स. बेसिकली ग्रेविटी क्या है? ये आपका एक फोर्स है. ग्रेविटी एक्सेलरेशन नहीं है. ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है ना, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted on a wait it is the force of attraction exerted by the earth on a body. ठीक है, चलो. So this is nothing but gravity. ठीक है, okay. उमेश पी दानेश्वरी सुस्लादी ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿಗತ್ತೀನಿ. What I'm trying to say, I'm trying to say that yes, सृष्टि नांदल, good. It is the force of attraction exerted by the earth on a body. ठीक है, चलो ये तो हो गया clearly. Now we'll come to acceleration produced. ठीक है, अभी देखो बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है ये भी बोलूंगा मैं. ठीक है, नाउ सो हियर इज योर अर्थ. ये आपका अर्थ है. ठीक है, एंड द ग्रेविटेशनल पुल ओवर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ठीक है, आपका कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट यहां पे है. दिस ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, इधर जा रहा है, बट दिस ऑब्जेक्ट विल गेट स्टॉप्ड हियर ओनली. ओके, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पे ग्रेविटी है सेंटर से, इसीलिए ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द सेंटर हो रहा है, बट इट विल गेट स्टॉप्ड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो इसको हम लोग कैपिटल एफ कहते हैं, ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटी. ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ, देयर विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, if the body is falling downwards तो वो प्लस जी मिलेगा. if the body is still moving in the upward direction, it should be a is equals to minus g against the gravitational pull. ठीक है,
क्लियरली समझ में आया बच्चों कुछ? नाउ व्हेनेवर दिस बॉडी इज फॉलिंग, मैंने बोला आपको इसमें इंक्रीज इन वेलोसिटी होगा, तो यहां पे रेस्ट है, तो रेस्ट से जो स्टार्ट होगा, तो पहला सेकंड जो पास करेगा वो आफ्टर 1 सेकंड यू विल ऑब्जर्व दैट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया। देन अगेन फ्रॉम हियर एडिशनली 10 मीटर पर सेकंड के साथ 10 मीटर और जुड़ गया फॉर नेक्स्ट सेकंड, तो दूसरे सेकंड में कितना ट्रेवल हो गया? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मेरी बात आपको क्लियरली समझनी पड़ेगी बच्चों। या सो द इंक्रीज इन वेलोसिटी यहां पे हो गया दूसरे सेकंड में, तो टोटली कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया? सो इट इज 30 मीटर because of increase in velocity. So this acceleration we have observed, it is due to gravity. तो इसको acceleration due to gravity बोलते हैं, ठीक है? Okay. Now, so acceleration due to gravity के लिए small g हमारा क्या है? It's a symbol, ठीक है? And for gravity you can use this as capital F, ठीक है? कैपिटल एफ करके सिंपली यूज कर सकते हैं। सर देन व्हाट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, यू नो व्हाट माय डियर किड्स, इसी एफ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, ठीक है? एफ जी, सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कैपिटल एफ एंड एफ जी इज बोथ आर वन एंड सेम, दोनों एक ही हैं, ठीक है? व्हेन यू आर टॉकिंग इन जनरल दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ ओवर अ बॉडी, तो कैपिटल एफ करके यूज करो। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू मासेस, यू कैन यूज दिस, ठीक है? चलो, so acceleration due to gravity, it is the acceleration produced in the motion of body due to gravity. ये gravity क्या है? Gravity is nothing but its force. It's gravity doesn't mean small g, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। Acceleration due to gravity small g होता है, तो gravity क्या होता है? Force होता है, ठीक है? ओके, दिस इज ओवर माय डियर किड्स। ये तो आपका क्लियरली हो गया डेफिनेशन, मतलब हमने एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस किया इन द मोशन ऑफ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने आपको डायग्राम से बताया था, ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द स्मॉल डेरिवेशन माय डियर किड्स, छोटा वाला डेरिवेशन को जाते हैं। डिराइव द रिलेशन, डिराइव द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity small g and gravitational constant कैपिटल G, ठीक है? So what we are trying out, we are trying out to solve the derivation, ठीक है? तो डेरिवेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? You need to take first of all consider a larger mass capital M, ठीक है ना? And the smaller mass small m, ठीक? So then the radius from the circumference of the circle to the center, यहाँ तक, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? दिखा रहे हो कि यार कोई पुल है, पुलिंग फोर्स है, ड्यू टू विच there is a production of the acceleration in the motion of the body, ठीक है? So इस फिगर से हमें क्या पता चल रहा है? In this figure, बाइफर्केशन कर लेते हैं थोड़ा सा, so that derivation थोड़ा सा easy हो जाए। In this figure, capital M is the mass of the earth, ठीक है? चलो कोई नहीं। Then small m is the mass
of the body. Capital R is the radius of the earth. So ये सारे considerations हैं. Then we'll get from Newton's law of gravitation. What we'll get? हमें क्या मिलेगा from Newton's law of gravitation? So we'll get that हमें मिलेगा F is proportional to um, wait small m1 m2 divided by d square. Okay, where ठीक है small m1 is capital M, small m2 is small m. ठीक है चलो. Now what is d? Distance क्या है यहाँ पे? Now if you see the distance, ये कोई point जो है छोटा मास यहाँ पे कुछ height पे नहीं है. So the distance between the space between small m and capital M is nearly equals to 0. ठीक है. So ये जो distance जो भी है वो distance क्या होगा? That distance is equals to capital R. So you can write the small d as capital R. ठीक है. So you can write what this implicates. So proportionality sign is removed with the capital G, and m1 can be written as capital M. This is small m divided by R square. ठीक है. चलो. But force is nothing but force. Force क्या है? Capital F है. Is nothing but weight. ठीक है. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप छोड़ोगे फ्रीली, इट विल बी डाउनवर्ड्स. तो वेट है वो. फोर्स क्या है? वेट है. सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू mg, है ना. तो mg जो वैल्यू है यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. ओके. सो mg, this implicates mg is equals to capital G capital M small m divided by R square. So small m and small m get cancelled. Therefore, what this implicates? ये क्या implicate करता है? आपका ये जो है implicate, what this implicates? Small g is equals to gm divided by r square. So this is the relation between, see here, small g and capital G, है ना. दोनों के बीच में क्या हो गया? Relation establish हो गया. So this is what the derivation between small g and capital G, my dear kids. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई? या सृष्टि नांदयाल. ओके, वेरी गुड. सो दिस इज योर डेरिवेशन. ये हो गया. चलो, अंडरस्टूड सर. फाइन, वेरी गुड. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट डेरिवेशन. तो एक डेरिवेशन हो गया. तो ऐसे कम से कम 6-7 डेरिवेशंस हैं छोटे मोटे, तो देखेंगे कौन से हैं. सो विल गो फॉर द नेक्स्ट डेरिवेशन. डिराइव द expression for acceleration due to gravity at a point above the surface of the earth. ठीक है. So this is your next concept. मतलब आपको क्या बोला जा रहा है? They are asking you to find out GH वाला expression, जो कि आपका क्या आना चाहिए? It should be wait,
नहीं ये नहीं, GH is equals to G into the bracket 1 minus probably 2H by R. So ये आपका एक्सप्रेशन आना चाहिए, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन यू शुड डिराइव। क्या है ये? व्हाट इज दिस? स्मॉल GH, G to the base H is equals to G into the bracket 1 minus 2H by R. Now I'll take a planet Earth, मैं planet Earth लूंगा, ठीक है। कंसिडर, आपको कंसिडरेशन के लिए 1 मार्क्स रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट, क्या लिखना है आपको? कंसिडर अ मास अर्थ। चलो मैं लिख ही देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक बाइफर्केशंस बनाएंगे, तो उसी हिसाब से डेरिवेशंस को भी डिराइव करेंगे। सो दिस क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, तो ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा अगर एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। सो आंसर, कंसिडर द planet Earth carrying an object thrown at height h. Consider the planet Earth carrying an object thrown at height h, where it is pulled by the earth. तो it क्या होता है? It is a object. It is pulled by the earth with the gravitational force and the mass of the object falling freely under gravity reaches with acceleration in the motion due to gravity towards the earth with GH वैल्यू, ठीक है। ये GH वैल्यू कितना है देखना पड़ेगा। सो दिस इज योर कंसिडरेशन पार्ट। तो ये आप मन से लिख सकते हो, पूरा सिनेरियो को समझो। किसी ऑब्जेक्ट को हवा में उछाला है एंड व्हेन इट इज कमिंग बैक टुवर्ड्स द अर्थ, so the motion with which the body is coming towards the earth, it will be going to have the acceleration produced into that motion due to gravitational pull of the earth. तो जब भी वो जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है फ्रीली, so it will reaches to the earth, it will reach the earth with the value of acceleration due to gravity, that is GH value. तो ये GH value क्या है हमें फाइंड करना है, ठीक है। now we are going to consider the earth. ये आपका earth है, ठीक है। so this is your earth, this is your earth. so for 1 marks आपको यहाँ पे तो मिल गया 1 marks कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि 5 marks को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, क्या आपको दिख रहा है? ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिर रहा है, ओके, फ्रॉम सम हाइट इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। सो दिस इज अप टू सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, अप टू सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ फ्रॉम द सेंटर, ये आपका रेडियस है, दिस इज योर रेडियस। मैं थोड़ा सा हट के दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियरली दिखे।
विजिबली। मैंने इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं बनाया, मैं थोड़ा सा हटा के दिखाया हूँ। इफ यू वांट टू अलाइन दिस, मैं अलाइन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं वैसे। So from here to here, this is height, and from here to here, this is radius. So here is the center, okay, and this is capital M, and this is small m, whereas this point is A, and this point is B. ठीक है? Now at this surface, इस point पे जो gravity act करेगा, acceleration due to gravity, that is small g value, और इस पे जो act कर रहा है वो acceleration due to gravity at height h. ठीक है? तो इतना सारा चीज हमने लिख दिया है. नाउ फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर फ्रॉम द फिगर वी नो दैट, हमें पता है A is a point. A is a point at height h. height h. ठीक है, मैं इसको पॉइंट बनाऊंगा. A is a point at height h from the surface of the earth. ठीक है, from the surface of the earth. चलो ठीक है. B is the point. B is the point on the surface of the earth. ठीक है, चलो. C is the center of the earth. C is the center of the earth. Now you are getting that. ठीक है. Capital M is the mass of the earth. ये क्या है? Mass of the earth. ठीक है, capital M. Now the last point I am going to make. ठीक है, capital R is the radius of the earth. मैंने to the base लिख दिया, आपको समझना है बस. ठीक है. So this is all your considerations. Now let me tell you, my dear kids, when you put a diagram, जब आप diagram डालते हो और उसके साथ टू टर्म्स को एक्सप्लेनेशन करते हो, एक एक ए को किया यहाँ पे और दूसरा बी को किया, मिनिमम टू. सो विद द डायग्राम, इफ यू एक्सप्लेन द टर्म मिनिमम टू, so you'll get another marks, 1 marks. ठीक है, चलो. So 2 marks you got out of 5. ठीक है. Now फॉर द कंसिडरेशन सेक, ये जो स्टार्टिंग के दो इक्वेशंस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसके लिए 1 मार्क्स रहता है. याद रखो, स्टार्टिंग के दो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity at point B. At point B is given by, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? Small g. We all know that small g is equals to क्या है? Capital G, capital M, R square. So can we take this as equation number 1? क्या हम इसको equation 1 करके ले सकते हैं बच्चों? Yes. थोड़ा सा वेट कीजिए, ये पूरा जो बोर्ड है पूरा गीला हो रहा है, हाथ से पसीना छूट के. चलो ठीक है. Okay. Now, we all know what is capital G. It is a universal gravitational constant. Now, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity सिर्फ सरफेस पे नहीं है. सरफेस पे जो है उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए आपने इक्वेशन बनाया, स्मॉल g इज टू gm डिवाइड बाय r स्क्वायर. At point A is given by, ठीक है, is given by, ठीक है, क्या बनेगा? स्मॉल g as it is, but to the base h लिखना है यहाँ पे, is equals to capital G
उसमें कुछ वेरिएशन नहीं आएगा, इट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, ठीक है। सो द मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल मास, इट इज अगेन सेम, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पे जो रहेगा ना दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम द सेंटर व्हेनेवर यू आर टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका रेफरेंस ले रहे हो, यू शुड टेक फ्रॉम द सेंटर। तो कैपिटल जी तो सेम रहेगा कांस्टेंट बिटवीन स्मॉल मास m एंड कैपिटल M, ये दोनों के बीच में क्या रहेगा, कैपिटल जी कांस्टेंट रहेगा, तो उसमें वेरिएशन नहीं आया। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन एज कैपिटल जी। सो कैपिटल मास ऑफ द अर्थ, उसमें भी चेंज नहीं आया, बट रेडियस यहां से लेके यहां तक पॉइंट बी तक है, तो अगर यही डिस्टेंस लेते हैं d इज इक्वल टू r बन जाता है। बट इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ए, वो डिस्टेंस क्या बन जाता है, r प्लस एच बन जाता है। क्या बन जाता है, r प्लस एच होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर सेम एज इट इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? किसी को कोई कंफ्यूजन? टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ओके ओके, सो लिसन अप माय डियर किड्स। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी एच वैल्यू। तो जी एच का वैल्यू हम जी के साथ कंपेयर करते हैं। सो इससे हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम फ्रॉम 1/2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम 1/2, सही है? नहीं, फ्रॉम 2/1, मैंने उल्टा लिखा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2/1। ये क्या इंप्लीकेट करता है, व्हाट दिस इंप्लीकेट्स, जी एच बाय जी। चलो ये तो क्लियर हो गया। सो जी एच का वैल्यू क्या है बताओ अभी मुझे, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, है ना। सो नाउ यू कैन राइट दैट, आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू शिफ्ट दिस हियर, मैं इसको यहां पे शिफ्ट करता हूं, ठीक है। सो इसको शिफ्ट करने से क्या मिलेगा पता है मुझे, आई विल गेट दिस वन, 1 होल डिवाइडेड बाय आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब आर प्लस एच होल स्क्वायर फिर आर स्क्वायर। सो दिस इज जी एच बाय जी। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू बाइफरगेट हियर, थोड़ा सा यहाँ पे। नाउ लिसन, जी एच बाय जी is equals to, I'm going to write 1 whole divided by r plus h divided by r raised to whole square, है ना। so you can write, ये कैसा है आपको कैसे दिख रहा है, अगर मैं इसको स्पेशली इसको मैं लिखूं इधर, तो 1 एज इट इज लिखूंगा, होल डिवाइडेड बाय एज इट इज लिखूंगा, r प्लस h डिवाइडेड बाय r को मैं x करके लूंगा, ठीक है, x स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x रेज टू -2, क्या लिख सकता हूं बच्चों? अगर इसको ऐसे लिख सकता हूं तो क्या मैं r प्लस एच डिवाइडेड बाय r रेज टू -2 लिख सकता हूं? या सो यू गॉट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। सो दिस इज वेरी मच सिंपल, मैं बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूं सारा चीज, कोई आपको डिफिकल्टी प्रोबेबली नहीं आने दूंगा, ठीक है। r बाय r प्लस h बाय r raised to -2, so r and r get cancelled, so this is 1 plus h by r raised to whole raised to -2, so this is gh by g, ठीक है। now this is the last expression, basically this is the last expression। क्या है last expression, when the two masses, समझो अर्थ यहां पे है और ये रेडियस r है, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस r से ज्यादा अगर कोई डिस्टेंस यहां तक आता है, मतलब when the height
of the small mass is very much greater than r, तब ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. कैसे? ऐसे, gh is equals to g into the bracket 1 plus h by r raised to minus 2 for the condition when h is far greater than r. तो ऐसे कंडीशन को आपको कौन सा वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा? यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों? ये यूज करना पड़ेगा. सर व्हाट इफ अगर हाइट रेडियस से कम है, मतलब ये रेडियस यहां तक होता है समझो, इससे कम है, नीचे है हाइट, नीचे है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे लोकेट कर रहा है, तो ये जो हाइट है ना, सो दिस हाइट इज लेसर देन ये, क्योंकि रेडियस जितना डिस्टेंस हो जाता है सेम डिस्टेंस, सिंस इसको आप कह सकते हो कि हाइट इज लेसर देन कैपिटल आर. तो इसके लिए आप कौन सा एक्सप्रेशन बनाओगे सर? फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h. तो उसके लिए बच्चों यू नीड टू अप्लाई बायनोमियल थ्योरम, अप्लाइंग बीटी. ठीक है, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 3. अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम टू इक्वेशन 3. ठीक है, वी गेट, हमें मिलेगा. ठीक है, क्या मिलेगा? gh is equals to g. So this minus 2 will be going to shift at the second term. सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट बन जाएगा 1 प्लस माइनस 2 इंटू h बाय r, ऐसे बन जाएगा ये आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम. मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? कुछ है ना? सो हाउ इट विल कम आई विल टेल यू टुमारो. ठीक है, मैं आपको बायनोमियल थ्योरम का ये एप्लीकेशन कैसे करते हैं मैं आपको कल बताऊंगा. But basically we are going to write the above equation gh is equals to g into the bracket 1 minus 2h by r. So this is your last expression. ठीक है, यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है. Hence we got the expression for acceleration due to gravity at height h. ठीक है, this is it my dear kids. So the class is over. तो क्लास तो ओवर हो गया बच्चों. If you have any doubts, हाँ संकेत, I taught you in the IIT classes. So my dear kids, if you have any doubts regarding the derivations or today's concept in the lecture 2, you can ask me now. If no, I will stop the class here only. And मेरे classes को regularly visit करते रहना. No doubt sir, it's very easy sir. Okay, clear sir, no doubt. Sanket, okay, clear sir, fine. So Vaishnavi Mat, take the attendance. Thanks for listening patiently, my dear kids. Tell to your other college friends. Good day, Sanket. You used to call me Guruji. I like that. Okay. And thanks for listening patiently. Like as much as possible my videos at my YouTube channel, Physics Indian Professor. So this is lecture 2. I will try my level best to make your physics easy. Okay. Jai Hind and bye-bye. Till tomorrow.